پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ مانچسٹر سے جوید اقبال چیمہ صاحب ہوں گے، مذہبی اسکالر بھی ہے، سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور موجودہ حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے تو کوئی اچھی خبر آنی میرا حال باندھی ہو چکی ہے۔ چیمہ صاحب ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ چیمہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیمہ صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک الحمدللہ، شکر ہے مولا۔ اچھا، چیمہ صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے، یہ ایک مارشل لا لگا ہوا ہے اور اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ جو بھی نگران گورنمنٹ آ رہی ہے وہ بھی نہیں جائے گی، وہ بیٹھی رہے گی۔ تو چیمہ صاحب کی باتیں تقریباً سچ ہی ہو رہی ہیں ابھی تک تو، جو بھی چیمہ صاحب فرما رہے ہیں۔ مگر آج جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی یونیورسٹی کا۔ چیمہ صاحب، اسلامی یونیورسٹی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ جو لڑکیوں والا معاملہ اسکینڈل آیا، کیا ہے؟ جی مبارک صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ایک جو بات کہی، بے شک وہ میرے فاصل تجزیے میں کہی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں ناظرین کے لیے، جو آپ کے ناظرین ہیں، جو آپ کے ویور ہیں، کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ ملک میں اس وقت ایسی مارشل ہے جس کے اٹاؤٹ جو ہے نا وہ اسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، اور اٹاؤٹ ایسے ہیں کہ ان کو کھل کے موقع مل گیا ہے اپنی چوری بھی ختم کرنے کی اور اپنے مزید اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری تگودو ہو رہی ہے۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی تھی، وہ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو الیکشن نہیں، اس ملک میں نہیں ہونے، اس ملک میں وہ مارشل لگا ہوا ہے جو کہ نظر نہیں آتا پس پردہ۔ یہ ایک انوکھا تجربہ ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو ایک جو انوکھا تجربہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب نگران جو ہے نا سیٹ اپ، وہ سال دو سال اس وقت تک چلے گا جب تک عمران خان مکمل طور پہ رستے سے آؤٹ نہیں ہو جاتا، یا اس کو قتل کر دیا جائے یا منظر سے ہٹا دیا جائے، جب تک وہ کسی طور پہ آؤٹ نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو بات چل رہی تھی۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامک یونیورسٹی کے بارے میں۔ تو میں مبارک صاحب آپ کو بڑے دکھ سے یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، میں نہیں چاہتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایسے ہی ہو، ہونا تو وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہنا ہے۔ باقی میرا جو دکھ درد ہے، میرا جو تجزیہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو کسی بہت بڑے جو ہے نا عذاب الہی کے آنے کا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ اس ساری قوم کو معاف فرمائے۔ عذاب ٹل سکتے ہیں، عذاب ٹل جاتے ہیں، انقلاب آ جاتے ہیں، مگر عوام کی شعور کی وجہ سے آتے ہیں، عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ جو خوف کا بت، جس طرح کوفہ کے اندر خوف کا بت تھا، یزید کی جو ہے نا وہ مدد لوگوں نے کی، امام حسین کی مدد کے لیے کوئی نہ نکلا کیونکہ خوف تھا، دہشت پھیلائی ہوئی تھی یزید نے۔ حالانکہ اس کے بیٹے نے بھی جو ہے نا اقتدار لینے کے بعد اقتدار کو 40 دن بعد چھوڑ دیا تھا کہ میرا باپ ظالم تھا، اس نے جو کیا، جس تخت میں بیٹھا ہوں یہ تخت خون آلودہ ہے اور میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اتنا بڑا جو ہے نا ظلم میرے باپ نے کیا اور میں اس تخت پہ بیٹھوں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے۔ تو بہرحال مجھے تو کسی بہت بڑے طوفان عذاب الہی کا پیش خیمہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ شاید اس عذاب کے آنے کے بعد یہ قوم ہی ختم نہ ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان تا قیامت رہے گا، جی قیامت تک اس نے رہنا ہے۔ وہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، وہ قوم کے اوپر منحصر ہے کہ اس کو زندہ رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے کہ نہیں، کیونکہ قومیں تباہ اس وقت ہوتی ہیں جب قوموں کے اندر اپنے جو کردار ہیں، اخلاق ہے، جھوٹ اور فریب اور مکاری، حسد، بغض، کینہ، نفرت، ریاکاری، دھوکہ، فراڈ، چوری بازاری، ڈاکو پانا، یہ سارے کام جو قوم کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اس کا ختم نہ ہونا یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے، اس قوم نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ایک مثال دیتا ہوں نمبر 1 پہ، کہ جس قوم کے اندر ایسے لفافے لینے والے، ایسے بغیرت و بے شرم صحافی موجود ہوں جو یہ سوال کریں اس دیکھتے ہوئے بھی کہ عمران خان ہر روز پیش ہو رہا ہے اور ایک صحافی کہتا ہے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہوتے، ایسے مقدمات، اپنے مقدمات کو فیس کیوں نہیں کرتے، تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑے عذاب کا جو ہے نا وہ پیش کرنا ہے کہ جب یہ شخص اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس بغض میں، حسد میں، کینے میں، نفرت میں اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ ایک شخص جو روزانہ پیش ہو رہا ہے کہتا ہے پیش نہیں ہوتے۔ اب اس سے علاوہ جھوٹ اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس قوم کے علماء، مفتی قرآن پاک کی بے حرمتی پر خاموش ہوں، اس قوم کا کیا بنے گا؟ کیا وہاں عذاب الہی نہیں آئے گا؟ جس قوم کے ہر ادارے میں اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور جیسے واقعات ہوں،
हर अदारे के अंदर। ये कोई सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, इससे पहले हमने कैंपस लाहौर के वाकयात, इस्लामाबाद के आज़म यूनिवर्सिटी के वाकयात और दूसरे शहरों के वाकयात, किंग एडवर्ड के वाकयात और दूसरे कराची के वाकयात, यूनिवर्सिटियों में क्या क्या हो रहा है, ये सारा उसी पेशखैमा है कि ये कौम जो है ना अपनी हदें क्रॉस कर चुकी है। तो जिस कौम में ये सारे सिपह सलार भी, हीरो भी, मौलवी हरीम शाह के दीवाने हों और हरीम शाह सोशल मीडिया पे ये कहे कि मान सकता हूँ कि ये मौलवी जो है ये तो लड़कों के दीवाने ज्यादा हैं, तो फिर आप समझ लें कि क्या बनेगा इस कौम का। और 5वें नंबर पे ये है कि जिस कौम के सिपह सलार को या हर अदारे के सरबराह की नंगी वीडियो जो है ना कुछ लोगों सियासतदानों के पास हूँ, तो फिर उस कौम का क्या बनेगा। जिस कौम के रेडी वाले को, कुल्फी फरोश को 4 महीने की सजा दे दी जाए और अरबों खरबों लूटने वालों को वजीर बना दिया जाए, उस कौम का क्या बनेगा। मैं नहीं कह रहा, आपके सामने सारी चीजें हैं, आप देखेंगे बाकी अजाब की शक्ल में जो अजाब है, ये तो एक अजाब है ना कि हाँ जालिम हुक्मरान का आ जाना, चोर लुटेरे हुक्मरानों का आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा अजाब होता है। अब अजाब तो कई किस्म के होते हैं, उसकी तफसील में नहीं मैं जाता। आप देखें ये हमारे ऊपर कितना बड़ा अजाब इस वक्त मुसल्लत है इस कौम के ऊपर। तो फिर 7वें नंबर में आज कहता हूं कि जिस कौम में किसी भी की इज्जत महफूज ना हो, और 8वें नंबर पे जिस कौम के अंदर फहाशी, बेहयाई, झूठ, मुनाफकत करने वालों को ओहदों से नवाजा जाए, यानी वो जितना बड़ा कोई चलाक होगा, जितना बड़ा कोई मकार होगा, जितना बड़ा कोई चोर लुटेरा होगा, वो उसको उतने बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। तो 8वें नंबर पे अर्ज करता हूं जिस कौम का वतीरा हो कि जो जितना बड़ा जालिम चोर डाकू हो, बगैरत हो, उसे कौम का नजाते दहिंदा बनाने की कोशिश की जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और कौम के साथ क्या होगा। और फिर 9वें नंबर पे जिस कौम के फिरौनों के पास कोई कोई मंजर ही ना हो स्वा इक़्तिदार के, सिर्फ इक़्तिदार ही असूल हो, तो फिर उस कौम का क्या बनेगा। जिस कौम का गरीब मजदूर चौराहों के ऊपर रो रो कर मर जाए, कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर उस कौम का क्या बनेगा। जिस कौम की बेटियों की इज्जत जेलों में महफूज ना हो, वहां उसके साथ रैप हो, जिस कौम के अंदर बड़ों की और फिर मरात और से मजीद नवाजा जाए, बड़ों को, जजों को, ब्यूरोक्रेट को, सेनेटर को, सेनेट के चेयरमैन को, यानी कि अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने ओहदों में बैठ के अपनी अपनी मराद में इतने इजाफा करते हैं, पहले ही उनकी बिजली फ्री, गैस फ्री, हर चीज फ्री, तो फिर उस कौम का क्या बनेगा। गरीब को तो बिल पे करना है, गरीब ने, अमीर ने तो कोई बिल पे नहीं करना, उसका तो कुक भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, गाड़ी भी फ्री है, शॉपिंग भी फ्री है, बेगमात की भी और अपनी भी। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उस कौम ने कब तक जिंदा रहना है। तो 12वें नंबर पे है जिस कौम के पास ना तो आइन है, ना कोई कानून की पासदारी करने वाला हो, तो कानून का इतलाक सिर्फ गरीबों गुरबा पर हो, वहां आप समझते हैं कि कोई अजाब नहीं आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जेलों के अंदर जो है ना वो लड़कियों के साथ रैप हों, और कोई ट्यूशन सेंटर, यानी लड़की को ट्यूशन के लिए भेज दो, वहां वो ट्यूशन मास्टर नहीं छोड़ेगा, कॉलेज में भेज दो प्रोफेसर नहीं छोड़ेगा, हॉस्टल में भेज दो, वहां हॉस्टल मैनेजर जो है ना सुप्रिटेंडेंट वो नहीं छोड़ेगा, शॉपिंग में भेज दो, शॉपिंग प्लाजा में उसके साथ हफ्ते होती है, सैर करने के लिए चली जाए तो वहां मरी और पटियाला वगैरह में और जो मंगला में पिछले दिन आपकी खबरें आई थी वो सरेआम वहां रैप हो जाता है। स्कूलों में तो पहले ही थे, मदरसे माशाल्लाह वो तो पहले ही महफूज नहीं थे, मौलवियों को हुजरे महफूज नहीं है कि मौलवियों के हुजरों में क्या होता है, ये भी अलग स्टोरी है। तो कोई जगह महफूज नहीं है कि जहां मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी की नाफरमानी ना हो रही हो। तो मुझे बताएं बाकी क्या रह जाता है कि ये कौम जिंदा रहे। कौमें कब तबाह होती हैं? मुबारक साहब, जब एक आदमी अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहता है, जब एक आदमी, ये बात सुनने वाली है मेरी, तो जब एक आदमी अपनी इज्जत की खातिर और डर खौफ में खामोश रहता है तो इसका मतलब है कि उसने 25 करोड़ आवाम की इज्जत और गैरत का सौदा कर दिया। क्यों? क्योंकि हर आदमी खामोश है मेरी इज्जत बच जाए, तो इसका मतलब है हर आदमी अपने खौफ और दहशत में अपने आदमी को बचाने में रहेगा, तो क्या होगा, पूरे 25 करोड़ आवाम जो है ना उसका सौदा करके निकला नहीं ना। जब वो बाहर नहीं निकलेगा, जब वो कोई अपनी दादरसी के लिए कहीं पेश नहीं होगा, जब वावेला नहीं करेगा, तो बच्चा भी रोता है तो माँ मुबारक दूध देती है ना,
उसके बगैर तो उसको याद नहीं होता कि बच्चे को दूध की जरूरत है। तो जब हम अपना खामोश रहेंगे तो हमारी खामोशी पूरी कौम की तबाही का सबब बनेगी। तो हम सारे खामोश तमाशाई हैं, तमाशा देख रहे हैं। आग किसी और में घर के लगी हुई है, और जब मेरे घर में आती है मैं भी खामोश, अब दूसरे का जो तरह से देख रहा था उसके घर में चली गई वो भी खामोश। तो फिर जब खामोशी जो है ना ऐसे हो जाए तो फिर 25 करोड़ अवाम जो है ना वो उसका तबाह होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तबाह होना ही होता है। तो ये एक बंदे की खामोशी पूरी कौम का सौदा कर देती है। तो हर कोई अपने अपने खौफ में खामोश रहता है, कौमें तबाह हो जाती हैं। बाकी सारे खेल के अंदर इसका खेल तबाही का जिम्मेदार कौन है, वो इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं ऐलान कहता हूं कि इसकी तबाही का जिम्मेदार मेरा हुक्मरान है, क्योंकि जिसने डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर सकता और कर नहीं सका। 75 साल से वो कौम की गरीबों की तकदीर से खेल रहा है। वो है मेरा सियासतदान, वो है मेरा ब्यूरोक्रेट, वो है मेरे जज, वो है मेरे जर्नैल, और वो है मेरे सारे अदारों के सरबराह, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दफ्तर में आते हैं माल बनाने के लिए, और किसी की भी ये मर्जी नहीं होती कि आज मैं दफ्तर में जाऊंगा और किसी को इंसाफ मुहैया करूंगा, किसी गरीब का काम करूंगा। वो ये है इस कौम के तबाह होने की जो है ना वजूहात। बाकी आप देखें, जिस कौम के लीडर बिल्लो रानी और दूसरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे जो गलीज करदार हैं वो करप्ट और ज़नाकार हों और वो ऊपर बैठा दिए जाएं या ऊपर आने के लिए तगो-दो करें कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो अगर ये हाल है, ऐसे लोग जिनका किरदार ही नहीं है कोई, जिनका कोई माफिया है, तो वो फिर अगर मजीद इनसे आगे तो लगाए हुए हैं कि ये जो है ना करप्ट टोला ये जाएगा तो फिर हम बारी लेंगे, या उसके बाद उसकी बारी, उसके बाद उसकी बारी, तो एक करप्ट के बाद दूसरा करप्ट जब बारी लेने के इंतजार में इस मुल्क को बेचेगा, कोई अमेरिका से साजबाज कर रहा है, कोई दुबई में बैठ के साजबाज कर रहा है, कोई लंदन में बैठ के साजबाज कर रहा है, और कोई अपनी एस्टैब्लिशमेंट को राजी कर रहा है कि एक्सटेंशन एक एक्सटेंशन ने बेड़ा गर्क करके रख लिया मेरी एस्टैब्लिशमेंट का एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन देखें साहब, कोई मजा तो है ना, कोई एक्सटेंशन में मजा तो है ना, मजे के बगैर कौन चाहता है कि मैं 3 साल की बजाय 6 साल लगाऊं, क्योंकि एक एक दिन का अरबों रुपए कमाना है। वो उसने हवस और लालच का ये अमर है कि हर कोई कहता है कि मुझे एक्सटेंशन मिले। हमने कानून ऐसे बनाए हुए हैं, एक्सटेंशन का तो कानून होना ही नहीं चाहिए था। तो जब ये सारा शोरा लग चुका है हर आदमी के मुंह को, जो भी जिस दफ्तर में बैठा है या जिस जगह बैठा है उसके मुंह को एक शोरा लग चुका है। तो एक छोटी सी बात कि इस्लामाबाद के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है इंसाफ गैस सेंटर का, उस दुकान को बंद कर दिया जाता है कि यहाँ इंसाफ गैस सेंटर का बोर्ड क्यों लगा है, यानी इस बुग़्ज़ और हसद के अंदर कि ये तरीके इंसाफ की दुकान ना हो। यानी अफसोस है, एक बंदर ने गैस सेंटर खोला, उसका नाम रखा है, तो फिर उसको क्या नाम रखना चाहिए? उसको नाम रख लेना चाहिए PDM रख ले तो ज्यादा बेहतर है, या किसी और करप्ट अफसर का नाम रख ले, या किसी और करप्ट अदारे का नाम लिख ले। ये तो इस मुल्क का हाल है कि इमरान खान ने, मैं समझता हूँ इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि इमरान खान को मैं समझता हूँ कि IMF को गारंटी नहीं देनी चाहिए थी कि जो होता है हो जाता, नहीं मिलते थे कर्जा ना मिलता। उसको ये शर्त रखनी चाहिए थी कि मेरे 10,000 कारकुन और मेरे 250 जो 200 केस हैं उनको खत्म करो, मैं गारंटी दे देता हूँ। चाहे एक दिन भी मुल्क चले ना चले नहीं चलता तो क्या जरूरत पड़ी है, इसको क्या गारंटी देने की जरूरत पड़ी थी? तो बहरहाल इमरान खान की जहां और गलती है उसमें ये भी ये गलती है कि इसको ये गारंटी, अब ये फिर देखना फिर कैसा मंजरनामा तब्दील होना था। फिर जब दिवालिया होना तो फिर इनके जिम्मे लगता ना, हो जाता ना दिवालिया। इससे तो बेहतर था ना कि कम से कम ये जो तजर्बात हैं ये तजर्बात रुक जाने थे, ये किसी और सिमत में चले जाने थे। तो ये भी एक चलो एक सरेरा बात आ गई। तो बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है ना ये एक कब्रिस्तान बना हुआ है। देखें कोई मैं नाम फिर नहीं लेता, देखें जितने भी बड़े हैं या बड़े अदारों के सरबराह हैं, वाइंड अप करें चीमा साहब, टाइम कम है, खत्म हो गया, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। हाँ तो ठीक है, तो मैं खत्म करता हूँ कि उनके सारे जो है ना इलाज बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, सिर्फ मरने के लिए कब्रिस्तान में पाकिस्तान में आते हैं। तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में ये निशानी है कि औरत जब निकलेगी घर से उसने लिबास पहना होगा और वो नंगी नजर आएगी। तो आज आप अंदाजा कर लें जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो तकरीरें की जा रही हैं, जो हमारे ख्वाजा असद साहब माशाल्लाह परोलियां परोल रहे हैं और जो डायलॉग मार रहे हैं, ये सब आपके सामने है। मुबारक साहब, मुझे तो आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ना करे
مگر مجھے تو کسی بہت بڑے عذاب کے آنے کی جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہے، آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہوگا تو وہی جو میرا اللہ چاہے گا، مگر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس پاکستان کو تا قیامت قائم رکھ، مگر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہمیں چوروں لٹیروں ڈاکوں سے نجات عطا جی فرما بہت شکریہ، اور کسی اچھے آدمی کو اوپر مسلط کر دے۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین زبردست باتیں، ایک ایک بات انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بتا دی ہے، میرے خیال مجھے بتانے کی اب کوئی ضرورت نہیں، لیکن درد ہے پاکستان کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔